Hello बच्चों, let's see the question and the question says that 27 to the power 27x to the power 4 minus 195x cube plus 494x square 520x plus 192 is equal to 0. The root being in a geometrical progression, then you have to find other roots. Okay, so key concept is okay, you have a key concept is if a1, a2, comma a3, comma a4 up to n terms are in GP, then relation between these terms will be a2 upon a1 is equal to a4 upon a3. Okay, फर्स्ट टू टर्म का रेशियो का फर्स्ट टू टर्म का रेशियो नेक्स्ट टू टर्म के रेशियो के इक्वल, फिर नेक्स्ट टू टर्म के रेशियो का इक्वल, तो फर्स्ट टू टर्म का रेशियो नेक्स्ट टू टर्म का रेशियो के इक्वल, फिर नेक्स्ट टू टर्म का रेशियो फर्स्ट टू टर्म का रेशियो के इक्वल. ओके, तो ये क्या होता है, ये कंटिन्यूअसली चलती रहती है प्रोसेस आपके पास. सो हियर वी हैव अवर बाइक्वाड्रिक इक्वेशन दैट इज 27x टू द पावर 4 minus 195x cube 494x square minus 520x plus 192 is equal to 0. And let's say A, B, C, D. Because this is a biquadratic equation, power कितनी है 4 है, तो roots will be 4. And these roots are roots in GP, geometric progression में. क्या होगा, B upon A is equal to D upon C. And after simplify this, we have a relation AD is equal to BC, first relation. Now we know that in a biquadratic equation ये क्या है, रूट्स हैं, तो रूट्स का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, ए बी सी डी. इसका प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा आपके पास 92 192 ई अपॉन ए 192 अपॉन 27. अगर ठीक है इसका रूट्स ऑफ ए प्रोडक्ट ऑफ ए रूट्स इज इक्वल टू 192 अपॉन 27. Okay, so we know that from property of a roots. So it AD into AD, because AD किसके BC किसके इक्वल है, AD का ही इक्वल है, इज इक्वल टू कितना होगा आपके पास 64 अपॉन 9. ये किससे कैंसिल, सो AD स्क्वायर इज इक्वल टू 64 अपॉन 9. तो इम्प्लाइज दैट AD की वैल्यू किसके इक्वल होगी 8 अपॉन 3, और AD किसके इक्वल है BC, तो BC की भी वैल्यू क्या होगी 8 अपॉन 3 होगी. Okay, now from the property of a roots we can write xa is a into xd, क्योंकि ये सारे के xd and xc and xb, तो ये क्या है, सारे फैक्टर हैं किसके गिवन इक्वेशन के, क्योंकि a b c d क्या है, रूट्स है हमारे पास. सो वी कैन राइट रूट्स इन टर्म ऑफ ए फैक्टर्स. So we can write root in term of a factor. Now multiply x minus a into x minus d. So we have here minus a plus d into x plus ad, and here say a plus d, and similarly x minus c. So from here we can write x square minus कितना हो जाएगा आपके पास mx plus ad. Okay, let's say that is our equation number first. Now multiply x minus b. So here we have x square minus b plus c x plus bc, and say b plus c is equal to n. So we can write x square minus nx plus bc. Let's say that is our equation number second. Now we can write our equation. हमारे पास इक्वेशन क्या है 27x to the power 4 minus 195x cube plus 494x square minus 520 and plus 520x plus 192 is equal to 0. ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस इक्वेशन में 27 से डिवाइड कर दिया. सो दैट विल बी x to the power 4 minus 195 upon 27. Okay,
प्लस ये हो जाएगा आपके पास कितना 494 एक्स स्क्वायर अपॉन 27 एंड माइनस 520 अपॉन 27x and plus 194 upon 27 is equal to 0. Now this equation, ये जो आपके पास इक्वेशन है ये किसके इक्वल है? ये आपके पास x माइनस ये आपकी इक्वेशन किसके इक्वल है? x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस, ये फैक्टर के थ्रू अगर हमारे पास ए बी सी डी फैक्टर है तो मैं क्या कर सकती हूँ, इनके मल्टीप्लाई से हमारे पास क्या होगी, हमारी इक्वेशन जनरेट होगी। तो यहाँ से अगर हम मल्टीप्लाई करें इनको तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या था, एक्स माइनस ए एंड एक्स माइनस डी का। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी कैन राइट एक्स स्क्वायर एम एक्स प्लस ए डी एंड एक्स स्क्वायर एन एक्स प्लस बी सी, okay, is equal to 0. So after multiply these two factor we have here x to the power 4. So after multiply these term we have x to the power 4. पहले x को पूरी 3 टर्म से मल्टीप्लाई, फिर mx को 3 टर्म से मल्टीप्लाई, फिर ad को 3 टर्म से मल्टीप्लाई. So we have here minus nx cube, okay, and plus bcx square, plus we have here minus mx cube, okay, and that will be plus mnx square, and that will be we have here कितना हो जाएगा ये, minus m bcx and plus adx square minus ad nx, and that will be ad bc is equal to 0. And after putting the value of ad and bc we have nx cube plus 8 by 3x square plus mnx minus m 8 by 3x plus 8 by 3 x square minus 8 by 3 nx plus 64 upon 9, because इन दोनों का मल्टीप्लाई किसके इक्वल था, 64 अपॉन 9 के इक्वल था. ओके, नाउ किसके फॉर्म में हम इक्वेशन लिखेंगे, यहाँ पे x टू द पावर 4 है, ठीक है. तो यहाँ पे हम अब x के टर्म में लिखते हैं, तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, x टू द पावर 4 after taking common x cube. In these two terms we have m plus n x cube, then we have here m n, okay, minus 16 by 3 x की जितने भी टर्म है, x स्क्वायर की जितनी भी टर्म है उनको सिंप्लीफाई करके क्या आएगा हमारे पास, यही टर्म आएगी. ओके, सो दैट विल बी ओके प्लस एक्स स्क्वायर, ओके, दैट नेक्स्ट x की टर्म क्या आएगी, x बाई 3 कॉमन आएगा, ठीक है. कौन कौन सी x की टर्म, ये है और ये है, और क्या आएगा m प्लस n इंटू एक्स एंड प्लस 64 upon 9. And let's say this was equation number 3rd and now our new equation is equation number 4. ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 3rd किसके इक्वल है, इक्वेशन नंबर 4 के इक्वल है, क्योंकि इसी के फैक्टर से मैंने इक्वेशन जनरेट की है. तो नाउ वी कैन कंपेयर, नाउ कंपेयर इक्वेशन नंबर 3rd and 4th. वी हैव हियर क्या होगा हमारे पास, देन वी हैव a plus b, m plus n is equal to 65 upon 9 and mn is equal to mn plus 16 upon 3 is equal to 494 upon 27. And after solving this equation we have mn is equal to 350 upon 27. Okay, अब हम क्या करेंगे, ये let's say that is our equation number A and that is our equation number B. Okay, so from equation number A and B, okay, हम इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से. तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या आएगा, m प्लस यहाँ पे n की वैल्यू इक्वेशन नंबर B से क्या आएगी, 350 अपॉन 27m is equal to 65
ठीक है। तो आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और आफ्टर टेकिंग एलसीएम वी हैव 27m स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आपके पास, दैट विल बी प्लस 350 अपॉन 27 इज इक्वल टू 65 अपॉन कितना 9, और यहाँ पे m भी होगा, ठीक है। तो ये 9 3 जा 27 हो गया, तो ये कितने हो गया आपके पास इक्वेशन 27 m स्क्वायर माइनस 60, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 65 से तो कितना आएगा, दैट विल बी 195 m and plus 350 is equal to 0. Now factorize this equation. So we have here कितना होगा इसका फैक्टराइज करके, that will be, so आगे कितना आएगा हमारे पास इक्वेशन आई 27m स्क्वायर माइनस 195m plus 350 is equal to 0. Now after factorize this quadratic equation, we have 27m square minus 90m minus 105m plus 350 is equal to 0. And after taking common 9m of first two term, we have here 3m minus 10. और यहाँ से कॉमन आ रहा है minus 35, so we have here 3m minus 10 is equal to 0. So 9m minus 35 and 3m minus 10 will be these two factor of a quadratic equation. तो यहाँ से m की 2 वैल्यूज आ गई 35 अपॉन 9 और m की दूसरी वैल्यू क्या आई 10 अपॉन 3. तो अगर हम फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 क्या है mn इज इक्वल टू कितना है आपके पास 350 अपॉन 27. तो यहाँ पे अगर मैं m की वैल्यू रखूंगी तो n की वैल्यू कितनी आएगी 35 अपॉन 9 is equal to 350 upon 27. So 10 जा and 3 जा, तो कितनी आई 10 by 3. तो सेम अगर मैं 10 by 3 रखूंगी तो कितनी आएगी 35 upon 9. So from here we can write m is equal to we have 35 upon 9 and n is equal to we have 10 upon 3. Okay, now put these two value into our put m and n value in equation number first and second and multiply them. तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या थी हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एम एक्स प्लस 8/3, सो दैट एक्स प्लस 8/3 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस 10/3 एक्स प्लस 8/3 इज इक्वल टू 0, क्योंकि फैक्टर हैं दोनों. ओके, सो यहाँ से क्या होगा फैक्टराइज करूंगी मैं इक्वेशंस को, तो सो दैट विल बी 9x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस कितना हो जाएगा ये 24 एंड होल अपॉन 9, और ये कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 और होल अपॉन 3. तो क्या होगा यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो 9x स्क्वायर माइनस 35 प्लस 24 and 3x square minus 10x plus 8 is equal to 0. So after solving these quadratic equation we have here, कितना होगा इनको अगर हम फैक्टराइज करूंगी तो क्या होगा इसको यहाँ पे x होगा, ठीक है. So that will be we have 9x square. Okay, और after factorize this we have minus 27x minus 8x plus 24. 3x square minus 6x minus 4x plus 8 is equal to 0. ठीक है, आफ्टर कॉमन आएगा तो क्या आएगा 9x minus 8 और ये हो जाएगा x minus 3. सिमिलरली इसका क्या होगा that will be x minus 2 and this will be 3x minus 4 is equal to 0. So our fourth factor will be 9x minus 8 and x minus 3, x minus 2 and 3x minus 4 is equal to 0. तो यहाँ से x की क्या क्या वैल्यू आएंगी 8/9, 3, 2
and 4 by 3. Okay, so these are factor of a given equation 8 by 9, 3, 2, 4 by 3. Okay, so I hope you all understood this explanation. Thank you and all the best.